start in the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Today we will discuss the major topic related to the microbiological testing, namely growth promotion test. उम्मीद करता हूँ प्रीवियस टॉपिक्स जो डिस्कस किए हैं उनमें भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी और इस टॉपिक में भी होपफुली आप लोग काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। Growth promotion test is also known as GPT of culture media is an important part of microbiological testing in the support of pharmaceutical quality. GPT is a qualitative controlled requirement that confirms the ability of new batch of media to support growth of predetermined selection of preventative microorganisms. It ensures that the medium is suitable for the intended purpose, such as cultivating bacteria or fungi for the various testing. During GPT, a known quantity of a reference microorganism is inoculated into the culture medium being tested, then incubated under specific conditions to see if it supports the growth of the microorganism. If the microorganism grows as expected, it indicates that the culture medium is suitable for its intended use. GPT test ensures the accuracy and reliability of microbiological testing procedures in the pharmaceutical and healthcare industries. GPT is critical for quality assurance, safety, and regulatory compliance. Now we discuss the importance of GPT, assuring the product quality, safety assurance, regulatory compliance, batch-to-batch consistency, cost efficiency, public health, and research and development. Assuring the product quality. GPT ensures the culture media used for the microbiological testing are high quality and support the growth of microorganisms. This is vital for accurating testing. Safety assurance. In pharmaceutical manufacturing, GPT varies that the media are free from the contaminants that could interfere with the production process or compromise product safety. This helps to ensure the safety and efficacy of the medicines. Now we discuss regulatory compliance. Regulatory agencies like FDA, WHO, GMP, and MHRA, etc. require GPT as part of good manufacturing practices and good laboratory practices to ensure product consistency and safety. Compliance with these regulations is essential for market approval and ongoing production. Batch-to-batch consistency. GPT is crucial in maintaining the consistency of culture media from one batch to another. Consistency is vital for research, quality control, and research and development. Cost efficiency. By confirming that culture media support microbiological growth, GPT helps avoid costly delay or error in microbiological testing. It ensures that resources are used efficiently in testing processes. Public health and food and beverages industries. GPT helps to prevent the release of products contaminated with harmful microorganisms. Protection, public health. Research and development. GPT supports research by providing reliable media for cultivating of microorganisms. Accurate and consistent media are essential for various research applications. Now in GPT we study main three properties of the growth promotion testing. One is growth promotion activity, second one is growth inhibitory properties, third one is indicative properties. In this lecture I have select two types of media. One is general purpose media and second one is selective media. If we discuss general purpose media, it supports the growth activity of the microorganisms. In this media, we use all kind of microorganisms. I have select R2A, TSA, and Newton agar media, and I have select two types of bacteria. One is Staphylococcus aureus, second is Bacillus subtilis for the GPT purpose. I have inoculated 100 cv for both organisms in selective media. Incubate them at respective temperature and respective duration. After their duration, I observe the percentage of their recovery. As per BP,
The acceptance criteria of GPT is 50 to 200%. Okay, now we study the selective media. In selective media we study two types of properties. One is growth inhibitory properties, second one is indicative properties. Okay, now first of all I study the growth inhibitory properties. For example, I have select citrimide agar, as we know that it is used for the pseudomonas, but to confirm the inhibitory properties, I inoculate E. coli CFU in the citrimide agar. After incubation, I observe the growth. If there is no growth, it means it have complete indicative inhibitory properties, and this media is valid for selective purpose. Okay, now we study the indicative properties. As we know that citrimide agar media is used for the pseudomonas. We inoculate 100 CFU of pseudomonas. After incubation, we observe the greenish colonies of pseudomonas appears on the citrimide agar. It means it contain indicative properties. थोड़ा सा मैं उर्दू में इसको डिस्कस करूं कि इस लेक्चर में मैंने दो टाइप्स की मीडिया सेलेक्ट की हैं, जिसमें हम तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जीपीटी की. एक्चुअली जीपीटी में देखते क्या है, तो जीपीटी में सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटी कितनी है, वो कितना सपोर्ट करती है मीडिया को. ठीक है, तो इसमें हम जो है ना ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोनिज्म्स यूज़ करते हैं, मीन्स के हर किस्म का बैक्टीरिया इसमें या माइक्रोनिज्म यूज़ करते हैं. तो इसमें मैंने R2A मीडिया यूज़ किया है, TSA और न्यूटन एगर एग्जाम्पल के तौर पर. और इसमें मैंने स्टेफालोकोकस और बैसिलस सबटिलिस की जो ना इनोकुलम दिया है, और इसको इंक्यूबेट किया है इसके रिस्पेक्टिव टेम्परेचर और टाइम पे ड्यूरेशन के लिए. तो अगर मैं बात करूं इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की, तो इस पर बीपी आपकी जो जीपीटी है वो 50 to 200 जो है ना एक्सेप्टेबल होती है परसेंटेज में. और अब मैं डिस्कस करूंगा ग्रोथ इनहिबिटरी और इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज़. जैसे कि हम जानते हैं जो citrimide agar मीडिया है वो यूज़ होता है सीडोमोनास के लिए. अब हमें इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें अल्टरनेट ऑर्गेनिज्म ऐड करेंगे. हम क्या करेंगे, citrimide agar मीडिया प्रिपेयर करेंगे और उसमें इनोकुलेट जो है ना वो E. coli का डालेंगे. उसके बाद हम इसकी इंक्यूबेशन करेंगे. इंक्यूबेशन के बाद हम जब देखेंगे तो उसमें जो है ना ग्रोथ नहीं आ रही. अगर नहीं आ रही, इट मीन्स कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें जो इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ है वो सही हैं और ये मीडिया वैलिड है आपके सिलेक्टिव पर्पस के लिए. ठीक है, अच्छा, अब हम अगर बात करें इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की, तो इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, चूँकि हमें पता है जो citrimide agar मीडिया है वो सीडोमोनास के लिए यूज़ होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 CFU सीडोमोनास के ऐड करेंगे और इसको रिस्पेक्टिव टेम्परेचर और टाइम पे इंक्यूबेट करेंगे. इंक्यूबेशन के बाद हम इसमें देखेंगे इसमें ग्रीनिश कॉलोनीज अपीयर हो जाएंगी. अब हमें पता है, हमने स्टडी किया है कि जो citrimide agar मीडिया है उस पर जो सीडोमोनास की मॉर्फोलॉजी है या कॉलोनीज़ हैं वो ग्रीनिश की आती हैं. तो हमें इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि जो इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज़ है मीडिया की वो भी सही हैं. तो इस ग्राफ बनाने का मकसद ये कि आप लोगों इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें कि मीडिया जो जीपीटी हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उसको किस तरह जो है ना जस्टिफाई किया जाता है. और यहाँ पे एक मैंने चार्ट डिज़ाइन किया है जिसमें हम सिलेक्टिव माइक्रोनिज्म्स, उनके लिए मीडिया, उनकी जो इनोकुलम है, टेम्परेचर है और इंक्यूबेशन कितनी होनी चाहिए जीपीटी के लिए, तो इसमें से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये चैप्टर मैंने टेबल बनाए जो है USP 61 चैप्टर के थ्रू, क्योंकि हमें पता है जो स्टेफालोकोकस है उसके लिए हमें मैनीटोड साल्ट agar यूज़ होता है, पर 61 चैप्टर जो जीपीटी का है उसमें वो क्लियर कट कह रहा है कि आपने जब ग्रोथ प्रमोशन टेस्टिंग करवानी है तो उसके लिए आप ये मीडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए चलते हैं. जो स्टेफालोकोकस है उसके लिए हम TSA मीडिया यूज़ करते हैं और उसमें 100 CFU जो है ना इनोकुलेट कर देंगे. इनोकुलेशन डालने के बाद 30 से 70 सेकंड पे हम इसको इंक्यूबेट करेंगे और 3 दिन के लिए. ठीक है, ये स्टेफालोकोकस की इंक्यूबेशन और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है. अब हम बात करेंगे सीडोमोनास की. सीडोमोनास के लिए हमें पता है citrimide agar सेलेक्टिव मीडिया है, पर इस पर गाइडलाइन हमें कहता है कि आप TSA पे भी इसको ग्रो करवा सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, TSA मीडिया में हम 100 CFU इसका इनोकुलेट करेंगे. इसका भी जो टेम्परेचर है वो 30 से 35 सेंटीग्रेड का होता है और इसकी जो इंक्यूबेशन ड्यूरेशन है वो भी 3 डेज़ की होती है. अब हम डिस्कस करेंगे बैसिलस सबटाइलिस को. तो बैसिलस सबटाइलिस के लिए भी हम जो है ना TSA मीडिया यूज़ करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, सबटाइलिस के 100 CFU ऐड करेंगे और उसका जो टेम्परेचर है वो भी 30 से 35 सेंटीग्रेड के लिए होता है और जो उसकी इंक्यूबेशन ड्यूरेशन है वो भी 3 डेज़ की है. अब हम बात करेंगे फंगस की. कैंडिडा अल्बिकन्स एक्चुअली SG मीडिया पे ग्रो करवाएंगे
ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, इंडियल बीकन्स के अंदर सेचुएट करेंगे और जो उसका टेम्परेचर है वो 20 से 25 सेंटीग्रेड है और ये इंक्यूबेशन जो होगी इसकी 5 डेज़ की होगी। सेम एज एस्परजिलस नाइगर के लिए भी एसडी मीडिया होगी, 100 CFM में ऐड करेंगे। इसका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो भी 20 से 25 सेंटीग्रेड है और इसकी जो इंक्यूबेशन ड्यूरेशन है वो भी 5 डेज़ की होगी। यहाँ पे आप लोगों को बताता चलो कि जो हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो 30 से 35 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ग्रो करती है, ठीक है। ये हमारी गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। जो अगर हमारे फंगस हैं, फंगस के लिए हम क्या करते हैं 20 से 25 सेंटीग्रेड की इंक्यूबेशन देते हैं, क्योंकि ये हमारे गाइडलाइंस कहते हैं। और फंगस जो हैं वो कूल टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे मेसोफिलिक होते हैं और इसलिए वो जो है ना बॉडी टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, इसलिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी 30 से 35 सेंटीग्रेड के बीच में होती है। ड्यूरेशन फंगस का हमेशा बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है। जो बैक्टीरियल ड्यूरेशन है वो 3 डेज़ का है और जो फंगल ड्यूरेशन है वो आपका 5 डेज़ का है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी। और एक और ज़रूर बात कि किसी भी लेक्चर के बारे में कोई भी सजेशन हो, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो, कोई भी आपने लेक्चर बनवाना हो तो उसका आप मुझे कमेंट में नाम या टाइटल बता सकते हैं ताकि फर्दर हम उस पर वीडियोज़ बनाएँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।